हाय गाइस, आज के लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और आपको बताया था कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स then the probability of A when B has already occurred is equal to probability of A intersection B upon probability of B. So if one of the event has occurred, then the probability of finding the other event is known as conditional probability. Now I can write this relation as probability of A and B, A intersection B, that is A and B, is equal to probability of B has already occurred into probability of A slash B. So we have multiplied the probability of B with the probability of A when B has already occurred. So this is known as multiplication theorem of probability. Similarly, if event probability of B when A has already occurred is equal to probability of A intersection B upon probability of A. Now if we cross multiply, then probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B oblique A or B slash A. Probability of this relation, probability of A and B is equal to probability of one of the event multiplied by probability of the other event when the first event has already occurred, is known as multiplication theorem of probability. Now first I will discuss the term dependent and independent events. Independent events. Two or more events are said to be independent if the occurrence of one event does not influence the probability of occurrence of the other event. अगर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी से दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चेंज नहीं होती है, तो इस टाइप की इवेंट को आप कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इज द कॉइन प्रॉब्लम। इफ यू थ्रो ए कॉइन ट्वाइस और आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालें फर्स्ट थ्रो में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, A event is probability of getting head, probability of getting head in the first throw. And B is the event probability of getting head in the second throw. Probability of getting head in the second throw. Now the probability of the event B will remain the same as probability of A. There will be no change. In the first case, in the event A, the probability of getting head is 1/2, and when this has happened,
event A has happened, then the probability of getting head in the second throw is also 1 by 2. There is no change in the probability. Then we can say the two events A and B are independent events. These A and A comma B are independent events. Now the second example of cards. Let us consider the example of drawing a card, drawing a king, from a pack of cards. So, probability of drawing a king from the pack of cards, there are 4 kings and there are total 52 cards, and if you draw one of the cards, then the probability of drawing a king will be equal to 4 upon 52 is equal to 1 upon 13. So, let the other event be drawing a king from the pack of cards second time. Now if this card of king is replaced, इसको अगर हम रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेस करने के बाद अगर हम सेकेंड टाइम किंग को ड्रॉ करेंगे तो द सिचुएशन विल रिमेन द सेम, और हमारी प्रोबेबिलिटी इस केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट किंग इन द सेकेंड केस विल ऑल्सो बी 4 upon 52 इज इक्वल टू 1 upon 13. सो these two events are इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि सेकेंड टाइम कार्ड ड्रॉ करने पे जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट टाइम के कार्ड ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, क्योंकि कार्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है. अगर हम कार्ड को रिप्लेस नहीं करते हैं पैक ऑफ कार्ड्स में, इफ़ द कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, यहाँ पे हमने कार्ड को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, कार्ड इज़ रिप्लेस्ड. और अगर हम इस कार्ड को रिप्लेस नहीं करें, यानी कि वो आप, तो फिर उस सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी आपकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जो है वो इज इक्वल टू 4 upon 52, लेकिन सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग विल बी इन्फ्लुएंस्ड, और उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग सेकेंड टाइम इफ़ यू ड्रॉ करेंगे तो आपका की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 upon 51, क्योंकि एक किंग आपने रिप्लेस नहीं किया है. आपने ड्रॉ करने के बाद आपके 52 कार्ड्स थे, एक कार्ड आपने ड्रॉ किया तो 51 कार्ड्स रह जाएंगे और किंग्स होंगे हमारे पास 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग सेकंड टाइम विल बी इक्वल टू 3 upon 51. तो इस केस में ये इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगी. तो अगर हम पैक ऑफ कार्ड से 2 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और फर्स्ट केस में किंग की प्रोबेबिलिटी, अगर कार्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं, सेकंड केस में किंग की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी. अगर हम कार्ड को रिप्लेस नहीं करते हैं, फर्स्ट ड्रॉ करने के बाद अगर हम कार्ड को रिप्लेस नहीं करते हैं, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी आ रही है 3 upon 51, जो कि चेंज हो गई है. तो इस केस में हमारे सेकंड केस में, इसके सेकंड जो एग्जांपल है, यानी कि अगर रिप्लेस नहीं किया जाता है तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट्स ए और बी, ए इवेंट है, ये हमारी बी इवेंट है, ये नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. तो अगर 2 केस हमने अभी डिस्कस किए, पहले कॉइन का केस डिस्कस किया, सेकेंड टाइम हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए पैक ऑफ कार्ड से, और इवेंट थी ड्राइंग ए किंग फ्रॉम द पैक.
तो इफ़ द कार्ड सेकेंड टाइम इफ़ वी ड्रॉ द किंग, सेकेंड टाइम इफ़ वी ड्रॉ द कार्ड और कार्ड को रिप्लेस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी विल रिमेन द सेम, दोनों ही केसेस में 1/13 आएगी। और सेकेंड वाले केस में हम देख रहे थे कि अगर हम कार्ड को रिप्लेस नहीं करते हैं तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। सो दीज वर द 2 एग्जाम्पल्स। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम इसके डिस्कस करेंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज वी हैव ए बैग और उस बैग के अंदर हमारे 3 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। अब आपको इसमें से 2 बॉल हमें ड्रॉ करनी है। फर्स्ट जो है इवेंट एक हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, रेड बॉल इज ड्रॉन। फर्स्ट टाइम अ रेड बॉल इज ड्रॉन, अ रेड बॉल इज ड्रॉन। This is our first event. Second event is a black ball is drawn. ये first time and second time, or simultaneously you can say. Now probability of drawing a red ball will be, probability of drawing a red ball is 3/5. Probability of drawing a black ball when red ball has been drawn will be equal to 2/5. There are 2 black balls and total balls 5, so probability, but in this case the ball which was drawn in the first case हैज़ बीन रिप्लेस्ड। यहाँ आपने रिप्लेसमेंट कर दिया है बॉल का, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। सिमिलरली अगर आप अब सेकंड केस हम लेते हैं इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, फर्स्ट रेड बॉल इज ड्रॉन, फर्स्ट रेड बॉल इज देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी 3/5 and second black ball is drawn and the red ball which was drawn is not replaced. In that case the probability will be equal to 2/4. Now this probability has changed. If red ball is drawn and in the second draw if the ball is not replaced, then the probability has changed. Therefore these 2 events you can say these 2 are not independent events. If we replace the ball in the bag and then we draw a black ball, then again the probability will be equal to same 2/5. Means in this case the ball has been replaced. आपके पास देखिए टोटल 5 बॉल्स रहेंगी और रेड बॉल जो हमने फर्स्ट केस में ड्रॉ की थी उसको वापस जो है आपने रिप्लेस कर दिया है, तो ये प्रोबेबिलिटी 2/5 और इस केस में प्रोबेबिलिटी 2/4 जो कि चेंज हो गई है। तो ये दोनों इवेंट्स आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं। हमारे पास पैक ऑफ कार्ड्स हैं और इन पैक ऑफ कार्ड से हम जो है 2 इवेंट को हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट इज कि कार्ड इज एन एस, कार्ड इज एन एस, और सेकंड इवेंट है कार्ड इज ए फेस कार्ड, ड्रॉन कार्ड इज ए फेस कार्ड। अब आपको ये बताना है कि इवेंट्स
इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। तो पहले हम देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एस की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो आपको पता है कि 52 कार्ड्स में 4 एसेस होती हैं। तो 4 एसेस में से कोई एक एस आप अगर ड्रॉ करेंगे तो उसके चांसेस 4/52, प्रोबेबिलिटी होगी 4/52 यानी कि 1/13। अब हमें ये चेक करना है कि अगर सेकेंड टाइम हम कार्ड कार्ड इज ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है एस की, जबकि फेस कार्ड हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन। तो अगर हम फेस कार्ड ऑलरेडी ड्रॉन और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज, और फेस कार्ड हमारे पास हैं 12, तो जो 12 कार्ड्स हैं वो सैंपल स्पेस का वर्क करेंगे और उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की, यानी एस की। तो ये 0/12, क्योंकि फेस कार्ड्स में कोई भी जो है आपका एस नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 0। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी एस की है 1/13, और अगर ये कंडीशन कार्ड इज ए फेस कार्ड तो प्रोबेबिलिटी है 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है यहाँ पे। पहले 1/13 है और सेकंड केस में, तो ये दोनों इवेंट्स जो है आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं। अब देखिए ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, यानी कि अगर पहले इवेंट ए होती है उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए बी की प्रोबेबिलिटी ए के हैपनिंग के बाद चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, then the event A and B are said to be independent events। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B। So if A and B are two independent events, then the probability of happening of A and B will be equal to probability of A multiplied by probability of B. Now if we have three events A, B and C, then if A, B, C are independent events, then probability of A and B and C will be equal to probability of A into probability of B into probability of C. So in the case of independent events, their probabilities are multiplied. This theorem is known as multiplication theorem of probability for independent events. If the events are dependent, in that case the probability of A intersection B, I have already told you, is equal to probability of A into probability of B if A has already occurred. Now if there are three events, probability of A intersection B intersection C, and these are dependent, these events are dependent, in that case suppose first event A takes place into probability of B when A has already occurred into probability of C when A and B have already occurred. So this is the formula for dependent events. Though in this case also all the probabilities are multiplied, and in the first case also all the probabilities are multiplied. Now we come to the independent events.
two events are said to be independent if the probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। अगर A और एंड B की probability of A into probability of B, अब ये फॉर्मूला हमारा यहीं से आया है कि probability of B स्लैश A probability of B के इक्वल होगी, तो probability of A intersection B will be equal to probability of A into probability of B। या आप ये शो कर दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि एक इवेंट के हैपन होने के बाद दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे इसका कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और अगर एक इवेंट के हैपन होने के बाद दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स। So this was all about multiplication theorem, and in the next lecture I will discuss some problems on multiplication theorem. So with this I conclude this session. Like and subscribe my channel for new videos. Thank you students.